Good morning, students. As you are seeing, good morning, students. As you are seeing in this particular lecture, we will study about the small gray bodies. What are the small gray bodies? Suppose we are taking two small gray bodies. The gray bodies are said to be small if their size is very less as compared to the distance between them. अगर दोनों बॉडी के बीच का जो साइज है वो बहुत कम है उनकी जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है उसके कंपेरिजन में, तो उन बॉडीज़ को वी विल कंसिडर स्मॉल ग्रेड बॉडीज़. सपोज 1 and 2 हैव इमिसिविटीज एप्सिलॉन 1 and एप्सिलॉन 2 और एब्जॉर्बिटी अल्फा 1 and अल्फा 2. If there are two bodies and the both bodies have emissivities epsilon 1, epsilon 2, absorptivity alpha 1, alpha 2, then the radiant energy emitted by body 1 is partially absorbed by body 2. तो जो total radiation heat exchange होगा between the two bodies, that we will calculate the energy that you are seeing, this one, this energy Q. How we will find out? Suppose द एनर्जी इमिटेड बाई बॉडी 1. बॉडी 1 ने कितनी एनर्जी इमिट की? A1 एप्सिलॉन 1 सिग्मा T1 की पावर 4. एंड द एनर्जी इंसिडेंट अपॉन द बॉडी 2, दैट इज F12 से मल्टीप्लाई कर देंगे A1 एप्सिलॉन 1 सिग्मा T1 की पावर 4. नाउ द एनर्जी एब्जॉर्ब बाई बॉडी 2. बॉडी 2 ने कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब की? अल्फा 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा 2 F12 A1 एप्सिलॉन अल्फा T1 की पावर 4. तो जो नेट एनर्जी ट्रांसफ़र हुआ फ्रॉम बॉडी 1 टू बॉडी 2, दैट वी विल फाइंड आउट Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 A1 F12 सिग्मा T1 की पावर 4. सिमिलरली द एनर्जी ट्रांसफ़र फ्रॉम बॉडी 2 टू बॉडी 1 वी विल कैलकुलेट Q2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 A2 F2 से लेके 1 सिग्मा T2 की पावर 4. दिस इज Q1, ठीक है, एंड दिस इज Q2. तो जो नेट रेडिएशन हीट एक्सचेंज होगा बिटवीन द टू बॉडीज, दैट इज Q 1 से लेके 2, दैट इज एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 A1 F1 से लेके 2 सिग्मा T1 की पावर 4 माइनस एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 A2 F2 से लेके 1 सिग्मा T2 की पावर 4. नाउ एज वी आर सीइंग बाय रेसिप्रोसिटी थ्योरम A1 F12 is equal to A2 F21, then we can replace any one by the other. If we will replace A2 F21 by A1 F12, तो this will be common out, और यहाँ पर जो F12 A1 F12 T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4, F12 is एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 which represent the equivalent emissivity or interchange factor for radiant heat exchange between two small gray bodies. Similarly, we will calculate small bodies in a large enclosure. If एक बॉडी है ये स्मॉल है और एक लार्ज इनक्लोजर के अंदर है, इस केस में जो नेट हीट एक्सचेंज आएगा, इफ़ यू विल गो थ्रू इट, देन वी विल कैलकुलेट Q नेट इज इक्वल टू F1 से लेके 2 F12 सिग्मा A1 T1 की पावर 4 माइनस T2 की पावर 4. तो यहाँ पर दीज आर द ज्योमेट्रिक फैक्टर एंड इंटरचेंज फैक्टर F12. Here we are seeing this is the configuration, this is the geometrical factor and this is the interchange factor. If there are the two infinite parallel planes, तो geometrical factor F1 से लेके 2 कितना होगा? 1 होगा, और interchange factor होगा 1 upon epsilon 1 plus 1 upon epsilon 2 minus 1. And if there are the two long concentric cylinder or concentric sphere, then geometric factor will be 1, and the interchange factor F1 से लेके 2 will be 1 upon epsilon 1 plus 1 upon A1 upon A2 multiplied में 1 upon epsilon 2 minus 1 upon minus 1. Next one is body 1 small enclosed by body 2. This will be geometric factor and this will be interchange factor. Similarly for body 1 enclosed by body 2, body 1 is large, then this is the geometric factor and this is the heat interchange factor. If there are the two rectangle with common side at right angle to each other, just like it, if you will see they are the two rectangle, ठीक है, तो in that case geometric factor will be 1 and the interchange factor will be epsilon 1 and epsilon 2, and this will be utilized in the numerical problem to solve the numericals. Now this is the important terminology that is known as electrical network analogy for thermal radiation system.
बेसिकली जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क एनालॉजी है, इट इज़ यूटिलाइज टू फाइंड आउट द नेट हीट एक्सचेंज बिटवीन द ग्रे बॉडी और बिटवीन द ब्लैक सरफेसेस। यानी ये एक पर्टिकुलर अप्रोच है जिसके थ्रू हम दो ग्रे बॉडी और दो ब्लैक बॉडी के बीच में नेट जो हीट एक्सचेंज है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द रेडिएशन। रेडिएशन इज द जी, as we are seeing it is defined as the total radiation incident upon a surface per unit time per unit area. It is expressed in watt per meter square। यानी जो भी आपके इरेडिएशन है अगर हम इनको डिफाइन करते हैं तो इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल रेडिएशन इंसिडेंट अपॉन ए सरफेस per unit time per unit area and it is expressed in watt per meter square। And the radiosity J, this is the term used to indicate the total radiation leaving a surface per unit time per unit area। As you are seeing, this is a particular surface, suppose this you will understand by this is a particular surface, opaque body है, नॉन ब्लैक बॉडी है। सपोज जो भी इरेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं, इरेडिएशन जो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं बच्चों, वो आपके इरेडिएशन क्या हैं, दिस आर द जी आपके इरेडिएशन है जो इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहे हैं। ड्यू टू इरेडिएशन दिस इज ओपेक्यू बॉडी, तो जो इसकी ट्रांसमिसिविटी है टाउ, वो तो क्या होगी बच्चों, जीरो होगी। जो अगर इसकी रिफ्लेक्टिविटी है, इसकी एब्जॉर्बिविटी मान लेते हैं अल्फ़ा है, ठीक है, इसकी ट्रांसमिसिविटी जीरो है और इसकी रिफ्लेक्टिविटी रो है। अल्फ़ा एब्जॉर्बिविटी, रो रिफ्लेक्टिविटी एंड ट्रांसमिसिविटी जीरो, बिकॉज ओपेक्यू बॉडी के लिए टाउ इक्वल टू क्या होता है, जीरो। तो जो भी पर्टिकुलर रेडिएशन इसके ऊपर इंसिडेंट हो रहा है, इसका कितना पार्ट, रो इंटू जी पार्ट आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ से ये रिफ्लेक्ट वाला पार्ट है एनर्जी का, जो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, दिस विल बी रिफ्लेक्टेड बैक, दिस विल बी रिफ्लेक्टेड बैक। तो जे अब यहाँ पर क्या होगा, दिस बॉडी इज ऑल्सो हैविंग सम टेम्परेचर टी, तो यहाँ से भी कुछ एनर्जी आपकी इमिट करेगी, दिस एनर्जी विल ऑल्सो इमिट। मान के चलिए ये जो एनर्जी आपकी इमिट्स कर रही है दैट इज़ ई एनर्जी यहाँ से क्या हो रही है आपकी इमिट्स कर रही है। तो बच्चों अगर ई एनर्जी यहाँ से इमिट्स कर रही है एज यू आर सीइंग, तो जे इज इक्वल टू ई प्लस रो इंटू जी, ठीक है। इफ़ यू आर सीइंग दिस वन, तो दिस वन इज जे इज इक्वल टू एज यू आर सीइंग ई प्लस रो इंटू में जी, ई प्लस रो इंटू में जी। ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जे इज इक्वल टू ई प्लस रो इंटू जी, दैट इज जे क्या आपकी रेडियोसिटी है, यानी जो एनर्जी रिफ्लेक्ट हुई है प्लस इमिट हुई है, दोनों का समीशन क्या है, रेडियोसिटी। अब आप यहाँ पे देखेंगे टोटल, सपोज करिए ये आपकी सरफेस है, यहाँ से आपका क्या आ रहा है, जी आ रहा है, ठीक है। यहाँ से आपकी जो एनर्जी आपकी जा रही है रो इंटू जी, यहाँ से इमिट हो रही है, ठीक है। और जो पर्टिकुलर एनर्जी जो यहाँ से निकल रही है इस बॉडी के अंदर से, वो आपकी क्या है बच्चों, ई है। तो यहाँ से अगर आप देख सकते हैं जे इज इक्वल टू ई प्लस रो जी, जे इज इक्वल टू ई को हम क्या लिख सकते हैं, ई आप बताइए, ई इज इक्वल टू क्या होता है, एप्सिलॉन इनटू में ई बी। अगर ई बी क्या है यहाँ पर, ब्लैक बॉडी की जो रेडिएशंस है वो होगी। अगर कोई भी बॉडी जिसकी एमिसिव पावर, मतलब जो बॉडी अगर परफेक्ट ब्लैक बॉडी की तरह वर्क करे, टेम्परेचर सेम पर हो, तो यहाँ से ई को लिख सकते हैं एप्सिलॉन इंटू ई बी प्लस रो इंटू जी एज यू आर सी। यहाँ से हमने क्या किया, अल्फा प्लस रो प्लस टाउ इज इक्वल टू 1 होता है, बट सरफेस कैसी है हमारी, ओपेक्यू है, तो टाउ इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस रो इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से हमने रो की वैल्यू निकाली, ये 1 माइनस अल्फा। और बच्चों अगर आप इस इक्वेशंस को देखेंगे यहाँ पर, तो इसमें रो की वैल्यू दे रखी है, तो इस रो की वैल्यू को हमने यहाँ से उठा के यहाँ पर पुटअप कर दिया। अगर हमने रो की वैल्यू को यहाँ पुटअप किया, तो जो जे की वैल्यू आ रही है स्टूडेंट्स यहाँ पर, एज यू आर सीइंग, जे की जो वैल्यू आ रही है, जे इज इक्वल टू एप्सिलॉन इंटू ई बी प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू में जी। ये वैल्यू आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये क्या वैल्यू आपकी, जे यानी रेडियोसिटी, एप्सिलॉन इंटू ई बी प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू में जी, ठीक है। ये आपकी क्या है, दिस इज द रेडियोसिटी, एप्सिलॉन इंटू ई बी प्लस 1 माइनस अल्फा इंटू जी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो किरचॉफ्स लॉ है वो बोलता है कि एप्सिलॉन अल्फा इज इक्वल टू एप्सिलॉन, तो अल्फा को अगर आप एप्सिलॉन की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन ई बी प्लस 1 माइनस एप्सिलॉन इंटू जी। और बच्चों अगर आप इसको एक्सचेंज करेंगे और यहाँ से ई बी की वैल्यू निकालेंगे, अगर आप इसको एक्सचेंज करेंगे और यहाँ से ई बी की वैल्यू निकालेंगे और यहाँ से जी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन इंटू ई बी को हम इधर लेके आ गए, जी को हमने इधर डिवाइड कर दिया, जे माइनस एप्सिलॉन ई बी अपॉन में 1 माइनस एप्सिलॉन। और अगर हम निकालते हैं जो नेट हीट एक्सचेंज होगा, ठीक है, जो नेट हीट एक्सचेंज होगा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बॉडी टू द पर्टिकुलर सरफेस, तो जो नेट हीट एक्सचेंज आएगा वो आएगा बच्चों, यहाँ से जो इरेडिएशन जा रहे हैं वो कितने जा रहे हैं, जे, और यहाँ पर रिसीव कितने हो रहे हैं, जी। तो यहाँ पे मान के चलिए 60 हमें रिसीव हो रहे हैं, 20 हमारे यहाँ से अलग से एक्स्ट्रा इमिट हो रहे हैं, तो और कुछ उसका पार्ट इमिट हो रहा है, तो जे में से क्या करेंगे, वी विल माइनस द जी,
जे माइनस जी क्या हो जाएगा, जो नेट हीट एक्सचेंज हो रहा है आपका जे माइनस जी क्यू नेट अपॉन में ए, क्यू नेट अपॉन में ए। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्यू नेट अपॉन में ए की अगर बात करते हैं तो दैट इज विल बी इक्वल टू जे माइनस जी। द नेट एनर्जी लीविंग ए सरफेस इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स रेडियोसिटी एंड इरेडिएशंस। अगर हम देखते हैं तो ये जो नेट एनर्जी है लीविंग ए सरफेस इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स रेडियोसिटी एंड इरेडिएशन, थस क्यू नेट अपॉन ए इज इक्वल टू जे माइनस जी। अगर आप बात करते हैं क्यू नेट अपॉन में ए तो दैट विल बी इक्वल टू जे माइनस। अब देखिए यहाँ पर ये जो जी है, यहाँ पर जो आपका जी है, ये जी बेसिकली क्या है आपका जी, हमने यहाँ से ऊपर से उठा के यहाँ पर पुटअप कर दिया, दोनों का एलसीएम लिया बच्चों। एलसीएम लेने के बाद इसको कैलकुलेशन को सॉल्व किया तो द वैल्यू दैट वी विल गेट दैट इज इक्वल टू ई बी माइनस जे अपॉन में 1 माइनस एप्सिलॉन माइनस ए अपॉन एप्सिलॉन। तो जो नीचे वाला टर्म आ रहा है 1 माइनस एप्सिलॉन अपॉन ए एप्सिलॉन, दिस इज नोन एज सरफेस रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, सरफेस रेजिस्टेंस ऑफ द रेडिएटिंग सरफेस। ठीक है, तो द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क इज दिस वन। द क्वांटिटी दिस इज नोन एज सरफेस रेजिस्टेंस एज इट इज रिलेटेड टू द सरफेस प्रॉपर्टी ऑफ द रेडिएटिंग बॉडी, क्योंकि ये जो रेडिएटिंग बॉडी है उसकी जो सरफेस प्रॉपर्टी है उससे बच्चों कोरिलेटेड होता है। अगर मान के चलिए नाउ वी आर कंसीडरिंग द एक्सचेंज ऑफ रेडिएंट एनर्जी बिटवीन द टू सरफेसेज टू नॉन ब्लैक 1 एंड 2। ठीक है, अगर 1 से जो 2 में आपकी एनर्जी एक्सचेंज हो रही है दैट इज J1 A1 F1 से लेके 2, और जो 2 से लेके 1 में एक्सचेंज हो रही है दैट इज J2 A2 F2 से लेके 1 है। अगर मान के चलिए बच्चों, ठीक है, F2 से लेके 1 है तो जो नेट हीट एक्सचेंज होगा Q1 से लेके 2 तो वो क्या हो जाएगा J1 A1 F1 से लेके 2 माइनस J2 A2 F2 से लेके 1। तो A1 F12 इज इक्वल टू क्या है आपका A2 F21। तो फाइनली A2 F21 की जगह वी विल प्लेस दिस वन A1 F12। तो A1 F12 को वी विल टेक कॉमन ब्रैकेट में J1 माइनस J2। अगर ब्रैकेट में हम यहाँ पे बात करते हैं दिस विल बी J1 माइनस J2, और अगर यहाँ पर आप देखिए Q1 से लेके 2 इज इक्वल टू क्या है आपका J1 माइनस J2 अपॉन में 1 अपॉन A1 F1 से लेके 2। अगर आप इस चीज़ को देखेंगे यहाँ से Q1 से लेके 2 इज इक्वल टू दैट इज J1 माइनस J2 अपॉन में 1 अपॉन A1 F1 से लेके 2। ठीक है, दिस विल बी योर नेट हीट एक्सचेंज। तो यहाँ पर जो 1 अपॉन A1 F12 क्या आएगा आपका, दिस इज योर स्पेस रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अगर दो बॉडीज़ हैं जिनके बीच में अगर हम मान रहे हैं कि बॉडीज़ को हम स्पेस रेजिस्टेंस लेके चल रहे हैं, ये और ये आपका क्या है बेसिकली ये स्पेस रेजिस्टेंस और ये आपके सरफेस रेजिस्टेंस है। इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, नेट हीट यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये EB1 ठीक है माइनस EB2 और जो नेट आपका रेजिस्टेंस है तीनों जुड़ जाएंगे R1 R2 R3, और इसको सॉल्व आउट करेंगे तो यहाँ से आपका क्या मिलेगा Fg 1 से लेके 2, और Fg जो यहाँ पर क्या है बच्चों ग्रेविटी फैक्टर कहलाता है। ठीक है, और ये हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।